Bismillahirrahmanirrahim. Class first year, chapter stoichiometry. Today our topic is mole concept. It's very important topic not only for those students who are going to take admission in first year class, but it is also important for those who are going to get prepared for ETA, MCAT and ECAT test. It's very easy to understand the concept of mole by taking start from a very general example. How? Like as you see that 1 dozen contains 12 similar items. So as 1 dozen contain 12 similar items, similarly 1 mole contains 6.022 N2 10 raised to the power 23 similar particles. As dozen is a definite quantity, similarly mole is also a definite quantity which contains these number of similar particles. This number is also called as Avogadro number or Avogadro constant. Now further to elaborate this example, as 1 dozen contain 12 items, so these similar items, sometimes they may be oranges, sometimes they may be bananas, sometimes they may be eggs, etc. Similarly, when we study 1 mole for Avogadro number of particles, so these particles will be sometime atoms, these will be sometime ions or molecules or formula units, etc. Mole, since we describe this as a definite or constant quantity, so it is used as a counting unit. It is also the unit of substance in SI system. Now to understand the origin of mole, so we must study this simple sketch. This sketch will help you to understand the basic concept of mole in chemistry. A chemistry student must know about the relative atomic mass, relative molecular mass, relative ionic mass and relative formula mass. These relative atomic masses or relative molecular masses or relative ionic masses or relative formula masses, they are also called as atomic masses or molecular masses or ionic masses or formula masses. When the relative atomic mass or molecular mass or ionic mass or formula mass, when they are expressed in gram, so they become gram atom, gram molecule, gram ion, gram formula unit. How? When relative atomic mass, if it is expressed in gram, so this becomes gram atom. When relative molecular mass, when it is expressed in gram, so this becomes gram molecule. When relative ionic mass, if it is expressed in gram, this becomes gram ion. And similarly, when relative formula mass, when it is expressed in gram, so this becomes gram formula unit. Now these gram atom, gram molecule, gram ion, gram formula unit, they are further described by one word, that is molar mass. Molar mass is then further equal to mole, and mole is that definite quantity which contains Avogadro number of particles. Now since molar mass is equal to mole, so molar mass is also defined as mass in gram of 1 mole of a substance. That is, mass in gram of 1 mole of any substance is called as molar mass. When we say that molar mass is the mass in gram of any substance,
The substance could be an atom or molecule or ion or formula unit. Means the mass in gram, that is the gram atom, is also called as molar mass. Similarly, for gram molecule, the word molar mass can be used. Similarly, for gram ion, the word molar mass can be used, and for gram formula unit, molar mass word can be used. Apart from this, as molar mass is equal to mole, so gram atom, gram molecule, gram ion and gram formula unit, that is also equal to mole. यहाँ पर आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जैसे मोलर मास मोल के बराबर है, तो ऐसे ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन या ग्राम फार्मूला यूनिट ये भी मोल के बराबर लिया जा सकता है, और ये फर्दर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट आपने लाजमी समझना है, जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट से गलती की गुंजाइश पैदा हो सकती है। कैसे कि जैसे हम वर्ड मोलर मास पढ़ते हैं, तो मोलर मास का ये मतलब नहीं कि ये मालिकुलर मास है। जब हम वर्ड मालिकुलर मास पढ़ते हैं, सो दरअसल मालिकुलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU, while molar mass is the mass of 1 mole of a substance in gram. So बाज़ औक़ात स्टूडेंट मोलर मास और मालिकुलर मास को एक ही मानों में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी, आयन भी और फार्मूला यूनिट भी, जबकि मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन AMU। ये जो स्केच हमने डिस्क्राइब कर लिया, इसको अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। जैसे पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर ली, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन ले ले, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU। अगर हम इस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, तो ये बन जाएगा 1.008 ग्राम, और इसी को मोलर मास बोलते हैं, और मोलर मास बराबर होता है मोल, और मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। चूंकि हमने एग्जाम्पल में सब्सटेंस एटॉमिक स्टेट में लिया हुआ है, लिहाजा यहाँ पर एवोगाड्रो पार्टिकल के साथ पार्टिकल की जगह पर हम हाइड्रोजन एटम लफ्ज़ लगा रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या सिंपली मॉलिक्यूलर मास है 44 AMU। जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ये 44 ग्राम बन जाता है, और ये मोलर मास हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, जो फर्दर बराबर है मोल के, और मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है। अगेन चूंकि हमने एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए पढ़ ली, तो यहाँ पर जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो पार्टिकल की जगह पर लफ्ज़ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आ गया। थर्ड, हम एग्जाम्पल ले रहे सल्फेट आयंस के लिए। सल्फेट आयन का रिलेटिव आयोनिक मास या सिंपली आयोनिक मास है 96 AMU। इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो 96 ग्राम बन जाएगा। ये मोलर मास है सल्फेट आयन का, जो कि फर्दर बराबर है मोल्स के, और इसमें भी 6.022 N2 सल्फेट आयन्स है। चूंकि हमने इस एग्जाम्पल में पार्टिकल्स की जगह पर आयन लिया हुआ है, लिहाजा आखिर में जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो लफ्ज़ पार्टिकल की जगह पर यहाँ पर सल्फेट आयन्स मेंशन कर लिए गए। फोर्थ एग्जाम्पल हम फार्मूला यूनिट के हवाले से पढ़ रहे हैं। सोडियम क्लोराइड एक फार्मूला यूनिट है
जिसका रिलेटिव फार्मूला मास या सिंपली फार्मूला मास है 58.5 AMU। इसको जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं ये बन जाएगा 58.5 ग्राम, और इसको मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट कहते हैं, और ये बराबर है मोल के, और मोल में अगेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। चूंकि हमारे एग्जाम्पल में हमने फार्मूला यूनिट को लिया हुआ है, लिहाजा एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वर्ड पार्टिकल की जगह पर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स मेंशन कर लिए गए। ये जो हमने अब तक मोल कॉन्सेप्ट के हवाले से डिस्कस कर लिया, इसमें हमने मोल को रिलेट कर लिया पार्टिकल्स के साथ। पार्टिकल्स के अलावा हमने मोल को रिलेट कर लिया मासेस इन ग्राम के साथ। स्केच में हमने मोल, पार्टिकल और मास इन ग्राम को डिस्क्राइब कर लिया। अब हम इन मोल, मास इन ग्राम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इंटर कन्वर्जन फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। इंटर कन्वर्जन फार्मूला, पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जब हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर विच इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इस इक्वेशन से फर्दर हम दो इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। एक इक्वेशन फॉर मास इन ग्राम है जो कि बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर मास, और इससे जो दूसरा इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये जो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये भी दरअसल मोल ही है। जैसे हमारे पास पहला फार्मूला है दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हम मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास भी इधर लिख सकते हैं, या इसकी जगह सिर्फ नंबर ऑफ मोल स्मॉल n भी लिख सकते हैं। एक ये इक्वेशन नंबर 4 हुआ। इसके अलावा अगर हमने किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं या कोई ख़ास नंबर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स अगर हमने मालूम करने हैं, तो इस इक्वेशन नंबर 4 में एक वर्ड का हमने इजाफा करना है, और वो क्या है कि number of atom is equal to number of moles multiplied by Avogadro number multiplied by number of atoms in one molecule। ये number of atom in one molecule, ये कभी total number of atom in one molecule भी हो सकते हैं, और कभी ये specific number of atom in one molecule भी हो सकते हैं, जो अभी relevant MCQs की मदद से explain हो जाएगा। Relevant MCQs. MCQ number first, that find out the number of mole in 40 ग्राम of calcium। अगर हमें दिया जाए कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल्स है, और हमारे सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 40 मोल, ऑप्शन बी 20 मोल, ऑप्शन सी 1 मोल, ऑप्शन डी 10 मोल। चूँकि हमें मास इन ग्राम दिया गया है और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल, तो इसके लिए हमने पहले फार्मूले की तरफ जाना है। पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम इस केस में है 40, तो 40 ग्राम तो हमें दिया गया है। दूसरा सब्सटेंस है कैल्शियम। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, तो हम अगर 40 डिवाइडेड बाय 40 कर ले तो आंसर आ जाएगा 1 मोल। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इस तरह एक दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं।
Second question is that which one is true for 196 gram of H2SO4? हमें 196 ग्राम ऑफ H2SO4 दिए गए हैं और इसके हवाले से हमने करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है 2 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो हम ये देखेंगे कि 196 ग्राम क्या ये 2 मोल H2SO4 के बराबर है या नहीं। अगेन यहाँ पर मास इन ग्राम है और हमने इसको मोल में कन्वर्ट करना है। चूँकि मास इन ग्राम है 196 और H2SO4 का मोलर मास होता है 98। अगर हम 196 को 98 ग्राम से डिवाइड कर ले तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। मींस ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 196 ग्राम ऑफ H2SO4। आइए देखते हैं सेकेंड ऑप्शन के लिए। सेकेंड ऑप्शन में मेंशन है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कि क्या 196 ग्राम 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के बराबर है या नहीं। तो जैसे हमने स्टार्ट में डिस्क्राइब कर लिया कि ग्राम मॉलिक्यूल बी मोल के बराबर है, तो इस ऑप्शन में हमें दिया गया है 2 ग्राम मॉलिक्यूल। चूँकि ग्राम मॉलिक्यूल की जगह पर हम मोल लिख सकते हैं या ये भी मोल के बराबर है, तो जैसे 2 मोल ऑफ H2SO4 है ऐसे 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी 2 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स है। So option B is also correct regarding 196 gram of H2SO4. Third option is 2N2Na and 4 oxygen atoms. हमसे पूछा जा रहा है कि क्या 196 ग्राम के लिए ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। इस ऑप्शन में 2 का मतलब है मोल, Na का मतलब है एवोगाड्रो नंबर एंड 4 का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन एटम, क्या ये ऑक्सीजन एटम 196 ग्राम ऑफ H2SO4 में 2N2Na and 4 के बराबर है या नहीं। सो 196 ग्राम H2SO4 का मतलब 2 मोल, ये करेक्ट है। मोल बराबर होते एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ तक 2N2Na का मतलब हुआ कि 196 ग्राम बराबर है 2N2 एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमसे ऑक्सीजन एटम पूछ रहे। अब हमने जाना है H2SO4 के फार्मूले पर। चूँकि H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में है 4 ऑक्सीजन एटम, सो हम फार्मूला नंबर 5 का जो फार्मूला नंबर 5 है ये किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम या किसी मॉलिक्यूल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स के लिए है। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसमें नंबर ऑफ मोल्स 2, इसमें एवोगाड्रो नंबर Na करेक्ट और नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल। चूँकि H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम है 4, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग 196 ग्राम ऑफ H2SO4। इसका मतलब ये हुआ कि 196 ग्राम ऑफ H2SO4 के लिए ऑप्शन ए इज़ आल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ आल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ आल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ नाउ option D, means all the statements are true regarding 196 gram of H2SO4. अब तक जितना हमने डिस्कस कर लिया ये मोल्स, पार्टिकल और मास इन ग्राम का रिलेशन था। इसके अलावा मोल को हम वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है दिस इज़ वेरी मच बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग chemistry and especially in first year chemistry and further for the beginners of first year chemistry. इस लेक्चर का ये मतलब नहीं कि इससे सारे क्वेश्चंस
क्लियर हो गई, लेकिन इससे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो मोल टॉपिक के हवाले से है वो इंशाअल्लाह आपको क्लियर हुआ होगा।